again we are meeting for the lecture, and hope you are prepared with the topic. Just a second. Hello. So hope you are prepared with the topic what we are seeing yesterday. Today we will be having the concluding lecture for this some basic concept in chemistry. एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कल हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, मतलब जितना हमारे बुक में दिया है उसके हिसाब से हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक कल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री इसके अंदर आते हैं, लेकिन वो हमारे बुक के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो हमें वो टॉपिक डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, और उसी के साथ ये आज के चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स हैव अ बिट रिकैप ऑफ द चैप्टर व्हाट वी हैव discussed here in this chapter. सबसे पहला, as the name suggests, some basic concepts in chemistry. So here in this chapter we have discussed many of the concepts which are very very fundamental and which are very very basic concept. That is what we have discussed. ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया. फिर उसके अंदर देखा हमने nature of chemistry, where chemistry interferes in our daily routine, and that is what we have seen. Furthermore, we have seen the branches of chemistry: physical, organic, inorganic, analytical, biochemistry. There are many branches of the chemistry. वो हमने डिस्कस कर दिए. फिर उसके बाद देखा हमने matter, the classification of matter. फिर हमने देखा metals, non-metals, metalloid. There are three states of matter: physical and chemical properties of the substances. Also, we have seen the units. That is, that is again classified into fundamental units and derived units. Also, we have seen measurable physical properties. That is length, mass, volume, temperature, density. Temperature के अंदर हमने फॉर्मूला देखा how we can convert. There are three different scales with which we measure the temperature: degree Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. That is also what we are seeing, our intercorrelation between them. Furthermore, we have seen laws of chemical combination, how chemical reactions are governed. So chemical reactions are governed by some certain laws and rules. और उसके अंदर हमने ये डिस्कस कर दिया कि there is a law of conservation of mass, there is a law of definite proportion, there is a law of multiple proportion, and Gay-Lussac's law of combining volume of gases. That is also what we have seen in last lecture. Furthermore, we have seen very important concept, that is atomic weight and molecular weight. And generally, whatever the atomic weights and molecular weight we have as of now, these are average atomic weights and average molecular weight. वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. ठीक है. फिर उसके बाद कल के लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में, हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था, which is very unknown concept, called as मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट के सिवाय फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे कंट्रोल के बाहर है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स हमें मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और हमने मोल कॉन्सेप्ट हमारे एक डजन के साथ हमने एनालॉजी की, कंपेयर किया. जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक डजन माने 12, एक डजन का मतलब 12 होता है, उसी तरीके से एक मोल, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स. Avogadro colleagues and scientists ने ये बताया कि 1 mole is the amount of substance which contains as many as 6.022 into 10⁻23 particles. That is called as 1 mole. So ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. तो 1 mole का कॉन्सेप्ट वही पे क्लियर हो जाता है. फिर जैसे जैसे रिसर्च सामने आते चला गया कि एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज 1 मोल एटम, एंड मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज 1 मोल or 1 mole molecule. So this is also called as molar mass. So molecular weight of any substance is known as molar mass, and molar mass always contains 6.022 into 10⁻23 molecules, and that's why 1 mole contains Avogadro's particles, and that is also called as 1 mole. So 1 mole is a molar mass is a 1 mole. So ये इस तरीके से हमने कल कंफ्यूजन, मतलब ये जो सारा कंफ्यूजन था पूरा हटा के हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया, और मोल को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिकली दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज मोल एटम एंड मोल और मोल मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे अभी भी कल का हमारा टॉपिक है, दैट इज मोल, व्हिच इज कॉल्ड एज मोल मॉलिक्यूल. तो मोल इज कॉल्ड एज मोल मॉलिक्यूल एंड मोल एटम इज कॉल्ड एज मोल एटम. ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का एग्जांपल था. तो ये जितने सारे एटम्स हम ले सकते हैं वो सारे एटम्स का एटॉमिक वेट लिया, एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया. अब उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मोल एटम. हियर ऑन दिस साइड वी हैव टेकन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो ध्यान रखिएगा, व्हेन वी टेक सब्सटेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इट्स मॉलिक्यूल, व्हेन वी टेक सब्सटेंस इन एटॉमिक फॉर्म इट्स अ मोल एटम.
So we have taken substance in molecular form and that's why we get this one. ये हम लोग इसे मिल जाता है कि हाइड्रोजन का molecular weight 2 है, 2 gram is 1 mole of hydrogen and it contains 6.02 × 10⁻23 molecules. याद रखने की बात है, जब सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में लिया जाता है तो उतने एटम्स होते हैं, और जब सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया जाता है तो उतने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया और उसी आधार पर हमने फाइंड आउट किया ये उस करके जो होता है. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम. सो 32 ग्राम इज कॉल्ड एज 1 मोल व्हिच कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. Cl2 का वेट होता है 71 ग्राम. 71 gram is called as 1 mole and that must contain 6.02 × 10⁻23 molecules. So this is what we are seeing. अभी थोड़ा सा उसी के मोल कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्चुअल बेस हुआ जो हमने देखा अभी. कॉन्सेप्चुअल बेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अभी हमें जो डिस्कस करना है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें यूज में आएगा. सो वी हैव टू डिस्कस मैथमेटिकल फॉर्म of this mole concept. So let's move to the formulas related with this mole concept. ठीक है. अब देखिए कोई भी फॉर्मूला जब बनता है तो जनरली फॉर्मूला के हमें कॉन्सेप्चुअल बेस की जरूरत होती है. हमने जो डेफिनेशन में देखा है वही हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं और जो फॉर्मूला में देखा है वही हम लोग डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो जैसे हमने देखा था कि 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स. ऐसा मतलब होता है. ये हमने देखा. तो ये सबसे पहला असम्पशन डेफिनेशन के अंदर आता है और सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो डेफिनेशन के अंदर देखा था. दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन दिस मच पार्टिकल. दिस इज आल्सो कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर. तो मैं उसे n0 लिखता हूँ, n लिखता हूँ. जैसे एवोगाड्रोस नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और n0 समटाइम. So this is Avogadro's number. Okay, and n is Avogadro's number, need not to write 0. That is molar mass. Also called as Avogadro's number, that is 6.022 × 10⁻23. So molar mass के अंदर इतने सब्सटेंस हैं, this is called as 1 mole. उसे भी 1 mole कहा जा सकता है क्योंकि 1 mole के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं जो 6.022 × 10⁻23 and that counts to be molar mass. That means molar mass is 1 mole. उसे कहते हैं. तो किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास 1 मोल होता है. Isn't it? So अगर हम जानते हैं कि मोलर मास इज 1 मोल तो हमारे पास अगर टोटल वेट होगा, टोटल वेट व्हिच इज डिनोटेड बाय W, टोटल वेट होगा तो दैट्स काउंट्स टू बी n मोल्स. है ना. किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास इसके अंदर 1 मोल होते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं बिकॉज़ उसके अंदर इतने पार्टिकल्स. तो अगर हमारे पास टोटल वेट कुछ तो वेट दिया हुआ है तो उस वेट के अंदर कितने मोल्स है ये फाइंड आउट करना है. n नंबर ऑफ मोल्स. उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरीके से आएगा. So molar mass is denoted by m. So m into n ये आएगा W. Here आपका आएगा molecular mass into n is equal to 1 mole into total weight, that is W. ये आएगा. तो अगर मुझे n निकालना है तो therefore n is equal to W by m. ये पहला फॉर्मूला बनता है जो कॉन्सेप्चुअल बेस के आधार पर होता है. अगर कॉन्सेप्चुअल बेस के आधार पर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा लर्न कर सकते हो. दोनों ऑप्शन आपके सामने. कॉन्सेप्चुअल बेस के आधार पर कैसे देखना है. Molar mass of any substance is called as 1 mole. So whatever weight, W weight is given to you, that counts to be n number of moles. N number of moles होते हैं उसे करना है. तो ये molar mass को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. So this is कैपिटल M. तो ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके molar mass into number of moles is equal to weight आता है. तो इसका मतलब है number of moles is W upon M. ये होता है. तो किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे n small n represents number of moles, W represents weight of the substance and m represents molar mass of the substance because ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारा जाता है. तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है n is equal to W by m. वापस बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ. What is n? n is number of moles of the substance. What is W? W is weight of the substance. Whatever the given weight to you, that is weight of the substance is denoted by W. And this is molar mass. अभी यूनिट्स तो आप अच्छी तरह जानते हो. अगर हमारा वेट ग्राम में है तो मोलर मास भी ग्राम में होना चाहिए. अगर हमारा वेट केजी में है तो मोलर मास भी केजी में होता है. जनरली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वेट ग्राम में लेते हैं तो मोलर मास शायद ग्राम में नहीं होता, या फिर कभी-कभी होता है कि वेट केजी में दिया है और मोलर मास हम ग्राम में यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट फेस डिफिकल्टी और आंसर रॉन्ग आएगा फिर. सो दैट्स व्हाई यूनिट्स का जो रूल हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी कैलकुलेशंस में, सिमिलर यूनिट्स हैज टू बी देयर. तो अगर इसका किलो है तो इसका भी किलो यूज करो, मतलब केजी किलोग्राम.
इसका अगर ग्राम है तो इसका भी ग्राम में यूज करो। सो यूनिट्स अगर सिमिलर रखते तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W by M। कीप इट इन माइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फार्मूला हमारा। दूसरा बेस यहाँ पे कहता है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं 6.022 into 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर, इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास n मोल्स है तो n मोल्स के अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, हाउ मेनी पार्टिकल्स आते हैं 1 मोल के अंदर, इतने पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स के अंदर, टोटल इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। तो वी कैन से ये भी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, isn't it? तो n is equal to आएगा that is you can say टोटल पार्टिकल्स, ये टीपी मतलब टोटल पार्टिकल्स अपॉन ये आएगा एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आपको ये दूसरा फॉर्मूला होता है, मतलब n निकालने का पहला फॉर्मूला है, अगर आपको सब्सटेंसेस वेट के फॉर्म में दिए तो वेट अपॉन मोलर मास विल गिव अ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n। अगर आपको पार्टिकल्स के फॉर्मेट में दिया है, टोटल पार्टिकल्स दिया है कि उसके अंदर इतने इतने पार्टिकल्स है, तो उस पार्टिकल को अगर हम 6.02 into 10⁻23 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपको मिलेगा। सो दीस आर द टू फॉर्मूलाज व्हाट वी गेट हियर। अभी तीसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मूला व्हिच इज इन द फॉर्मेट ऑफ वॉल्यूम। सो लेट्स मूव टू थर्ड फॉर्मूला। ओके, अभी इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एक्वायर्स 22.4 dm³ वॉल्यूम। इट इज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 22.4 dm³ एट STP। एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, दोनों भी लिए जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। मैंने तो कहा कि नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं, ना कि हम लोग टेम्परेचर दूसरे किसी फॉर्मेट में। सो 1 mole of any substance always acquire 22.4 dm³ volume at STP। dm³ मतलब डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे ये एक्वायर करता है। सो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स विल एक्वायर v वॉल्यूम एक्वायर करेंगे। ओके, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा फिर टोटल वॉल्यूम अपॉन 22.4 dm³। वॉल्यूम इज आल्सो इन dm³, दोनों dm³ में होने चाहिए। दिस इज वन। तो दिस इज आल्सो फार्मूला व्हिच इज फॉर्मेट इन द व्हिच इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो ये तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए हम तीन फार्मूला देखे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर हमें वेट के फॉर्मेट में दिया है तो वी हैव टू यूज द फर्स्ट फार्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मेट में दिया है वी हैव टू यूज सेकंड फार्मूला। अगर हमें वॉल्यूम के फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, HCl, ऑक्सीजन, दीज आर द गैसियस सब्सटेंसेस। तो गैसियस सब्सटेंसेस के केस में हमें वॉल्यूम दिया जाए। Whenever we are provided the volume format, we use this formula. N is equal to total volume, whatever the volume given, divided by 22.4 dm³। This is the formula. So these are the three major formulas. तो अभी ये तीन फॉर्मूला आते कैसे, ये भी यहाँ पे बताया कॉन्सेप्चुअली, बिकॉज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। और दूसरी बात है कि इनका फॉर्मूला भी दिया है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, तो सबसे बेस्ट होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं डिफिकल्टी हो तो थोड़ा सा जैसा आप रीड करते जाएंगे अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनता जाएगा, लेकिन लर्निंग तो अभी करना पड़ेगा फिर एटलीस्ट मिनिमम पे। और फॉर्मूला इजी है ना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला n इज इक्वल टू W by M, isn't it? दूसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू टोटल पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पे है n इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dm³। तो 22.4 dm³ इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल at STP पे 22.4 dm³ वॉल्यूम एक्वायर करता है। दिस इज द बेसिक और फंडामेंटल कांसेप्ट व्हिच इज गिवन ओवर देयर। सो दैट्स व्हाई उतना होता है। क्लियर विद दिस? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वी हैव सीन हियर। ये मोल कांसेप्ट होता है जो व्हिच इज यूजफुल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में भी कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं फार्मूला के आधार पर कर सकते हैं, और इस फार्मूला को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अभी देखिए ना कि पहला फार्मूला अगर देखते हैं हम लोग n इज इक्वल टू W by M, कोई भी दो क्वांटिटी दी है तो थर्ड क्वांटिटी वी कैन फाइंड इट आउट। हमें वेट दिया है, मोलर मास दिया है, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, वी कैन कैलकुलेट द वेट।
हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए, वेट दिए, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास। कोई भी दो क्वांटिटी दिए थर्ड निकालेंगे। तो इस फार्मूला के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। अगर हम लोग सिर्फ लर्न करते हैं तो रीअरेंजमेंट में कभी कभी फिर मिस्टेक करते हैं। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग जरूरी है विद द लर्निंग। सो इसके कारण ये फार्मूला हम लोग फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। वी कैन मॉडिफाई द फार्मूला एंड वी कैन यूज दैट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो डायनामिकली किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट based on the understanding of the concept. What is mole concept? What is its definition? How it can be converted into number of particles, number of the volume and weight. So that is what we have seen. So this is the mole concept, which is very, very important. Clear with this? Hope so you got it. Now, कुछ दो तीन टॉपिक है जो हमारे बुक के अंदर नहीं लिस्टेड है, लेकिन मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में हमारे सामने आएंगे। आज नहीं तो कल लेने हैं, क्यों ना हम लोग इसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज़ दीस आर बीइंग वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? सो चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर लिस्टेड है, शायद हमारा मिस आउट हुआ था कल, उसे हम लोग आज ले लेते हैं। और कुछ ऐसे कि जो नहीं है। सो एक फॉर्मूला मास करके आता है, फॉर्मूला मास और फॉर्मूला वेट करके आता है। जैसे हमने कल मॉलिक्यूलर वेट की बात की, उसी तरीके से फॉर्मूला मास आता है। तो आप देखें ना कि सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl, है ना। नॉर्मली तो हम लोग NaCl लिखते हैं, बट NaCl सॉल्ट के बारे में एक खासियत देखी गई कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट डू नॉट हैव द डेसिकेट मॉलिक्यूल्स। मतलब इट हैज द डेसिकेट मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, इट डोंट हैव एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो NaCl नाम का जो सब्सटेंस है, उसका NaCl ऐसा मॉलिक्यूल आपको कभी बल्क के अंदर मिलेगा नहीं, बिकॉज नेचुरली इस सब्सटेंस की अगर बात करते हैं NaCl की, तो सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन इज सराउंडेड बाय सोडियम। इस टाइप का, मतलब इस टाइप का सिनेरियो होता है उसके अंदर। एवरी सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन एटम्स एंड एवरी क्लोरीन एटम सराउंडेड बाय सोडियम एटम। तो उनका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, बट अगर हम लोग कितने सोडियम कितने क्लोरीन के साथ सराउंडेड है और कितने सोडियम कितने क्लोरीन के साथ सराउंडेड है, ये अगर फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो मिलता है 1:1। और उस रेशियो के आधार पर हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड मस्ट बी NaCl। ऐसा होता है। तो देखिए कि सोडियम क्लोराइड नाम के सब्सटेंस के अंदर आपको NaCl का क्लियर कट मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि उनका जो अटैचमेंट होता है वो सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय सोडियम मॉलिक्यूल्स। एंड इस टाइप के सब्सटेंसेस में क्लियर कट मॉलिक्यूल नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव अ डिफरेंट कांसेप्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। तो उनका रेशियो निकाला जाता है कि हाउ मच सोडियम के एटम्स, मतलब हाउ मच एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट देयर with the ratio of how much atoms of chlorine are present there, and that found to be 1:1. That means the formula must be NaCl like this. तो इस केस में क्या किया जाता है कि फॉर्मूला मास निकाला जाता है। तो फॉर्मूला मास क्या होता है कि सम टोटल ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। सम टोटल SUM एडिशन, sum total of different atoms, the atomic weight of different atoms present in a molecule of compound is called as, you can say, formula mass. तो सोडियम क्लोराइड, PbCl2, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे कई सारे सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपको इस टाइप का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है, Na2CO3 लाइक दिस आर द सॉल्ट्स, कि जहाँ पे हम लोगों को ये मुश्किल होता है थोड़ा सा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलना, और वहाँ पे फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला मास इसका ये, जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरीके से ये है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है कि जिनके मॉलिक्यूल्स डेसिकेट नहीं होते हैं, डेसिकेट होते हैं, मतलब क्लियर कट एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनके लिए हम फॉर्मूला मास कांसेप्ट यूज करते हैं। एडिशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नोन एज फॉर्मूला मास कांसेप्ट। तो ये कांसेप्ट उसके अंदर आता है, बस इतना ही था ये। तो एडिशन करेंगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने स्टोइचियोमेट्री की बात की। स्टोइचियोमेट्री एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जो इस केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों जगह ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस स्टोइचियोमेट्री? स्टोइचियोमेट्री का जैसे मैंने कल बात की थी आपको कि दिस इज द concept of chemistry, branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between reactant and product. Quantitative relationship between reactant and product ये होता है। सो कितने रिएक्टेंट के साथ कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितने कौन से रिएक्टेंट के साथ कौन सा दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, ये जो क्वांटिटी का रिलेशन है ये बताने वाला कॉन्सेप्ट है स्टोइचियोमेट्री। जैसे कि हम लोग H2Cl2 की बात की थी, H2 + Cl2 प्रोसेस ट्वाइस HCl, इसके हमने बात की, इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर देखिए ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और HCl के 2 मॉलिक्यूल तैयार करता है। अभी स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम जब आते हैं
तो केमिस्ट्री में और स्टोइचियोमेट्री में कभी भी गलती से इसे मॉलिक्यूल नहीं लिया जाता। ये स्टोइचियोमेट्री का पहला रूल है। स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कितना क्वांटिटी रिएक्टेंट का है, कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट है, ये फाइंड आउट करना मतलब स्टोइचियोमेट्री है। सो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अभी जो मैंने लिखा है वो केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है। और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, और बीच में एरो होता है, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट। रिएक्शन लिखने का हमेशा तरीका रखिए, रिएक्टेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड, product to the right hand side, an arrow pointing towards the product, मतलब these reactants are going to convert into product, ऐसा उसका मतलब होता है। तो दिस arrow, तो arrow की तरफ सारे reactant है, arrow की तरफ सारे आपके product है। और उसकी दूसरी बात है, in this reaction has to be balanced. Balance मतलब how much number of atoms of reactants are there to the left hand side, that must be balanced with how much number of atoms present on the right hand side. तो अब इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन का आगे कुछ नहीं, आगे का नंबर हमेशा नंबर ऑफ मोल्स बताता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है स्टोइचियोमेट्री का कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सफिक्स होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का, वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि x हैज 1x, x हमेशा 1x होता है। हम अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो x के आगे 1 होता ही है, हम कंसिडर करते हैं होता है वो, पर लिखते नहीं ना हम लोग, सिर्फ x लिखते हैं। x लिखा तो भी उसका मतलब 1x होता ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं मतलब 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, लेकिन वो जो 1 है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल, दैट 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मोल। अभी जो हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा, दैट मोल। तो मॉलिक्यूल और मोल में बहुत डिफरेंस है। एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा। एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है और मोल बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ा है। सो इन दैट सेंस यहाँ पे जो लिखा है वो 1 है एंड दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 1 मोल। तो हम रिएक्शन ऐसा पढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 moles of HCl. This is the way only how to read the reaction in chemistry. चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ने का तरीका यही है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या है तरीका? 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl. HCl के 2 moles तैयार होते हैं। So this is very important वे है उसका रिएक्ट होने का तरीका ये है। Clear with this? So hope so you got this. This is the reaction. तो इसका मतलब है इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है 1:1:2 है, 1:1:2 है। So 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl, and this is called your stoichiometry. ये हमें हमेशा ऐसा ही होगा। अभी देखिए दूसरा रिएक्शन देता हूं मैं, दैट इज N2 plus thrice H2 produces twice NH3, ऐसा रिएक्शन। ये NH3 मतलब अमोनिया है। हाइड्रोजन रिएक्शन विद नाइट्रोजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया तैयार होता है। अब इसके अंदर की बात देखिए, इसके आगे 1 है, मतलब पढ़ने का तरीका क्या होगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ अमोनिया। तो इसका रेशियो देखेंगे तो 1:3:2 है क्वांटिटी रिलेशन। अगर मुझे इसके 4 मोल्स तैयार करने हैं तो इसका डबल करने पड़ेंगे, इसका डबल हो रहे तो इसका मतलब 2:6:4 ऐसा लेना पड़ेगा। 2:6:4 इस तरीके से वो रिलेशन होता है। सो ये अगर रेशियो लेते हैं तो वापस 1:3:2 आएगा। मैथमेटिक्स के रूल जानते हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो 1:3:2 ही आएगा। सो दिस इज द हाउ रिएक्शन डन। मतलब केमिस्ट्री में chemical how chemical reaction occurs, they are governed by some certain rules, laws. और उसके अंदर stoichiometry मतलब how much quantity of nitrogen reacts with how much quantity of hydrogen to produce how much quantity of product, that is stoichiometry. So stoichiometry is a branch of chemistry which deals with quantitative relationship between reactant and product, है ना? ऐसा कि हमारे घर में अगर हमें चाय बनाना है और हमारे घर में मानो 2 ही कप चाय बनाना है तो 2 ही कप रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा रखते हैं कि 2 लोगों को चाय चाहिए लेकिन 5 कप चाय बनाते तो ये दिस इज नॉट द बैलेंस वे। या फिर 2 लोग हैं लेकिन 1 ही कप चाय रखते तो आधा आधा पीना पड़ेगा, देयर इज आल्सो नॉट अ बैलेंस वे प्रोवाइडेड। मतलब तो जितना बनाना है उतना, तो रिएक्टेंट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा एंड दैट रिलेशन हैज टू बी कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री। और स्टोइचियोमेट्री फाइंड आउट करने के लिए नंबर 1 देयर शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज टू बी रिटन, देन द सफिक्स हैज टू बी कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है।
ये दो चीजें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर स्टोइचियोमेट्री निकाल सकते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज टू बी देयर, and the quantitative relationship between reactant and product must be known as stoichiometry. So this is what we have. This is one more important concept what we have done. Okay. Now the next concept is called as percentage. So next concept is a percentage by weight. So you can say percentage by weight. Percentage by weight. अभी क्या होता है ना कि कई सारे मॉलिक्यूल्स हमारे सामने होते हैं और हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मतलब से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूं कि मानो हमारे पास CH4 नाम का सब्सटेंस है, CH4 दैट इज द मीथेन। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं पहला ही सब्सटेंस है हमारा मीथेन, CH4, दिस इज मीथेन नेम सब्सटेंस। मीथेन के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। सो मीथेन मॉलिक्यूल हैज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम, मीथेन मॉलिक्यूल हैज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं कॉन्शियसली सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले सकते हैं वंस वी अंडरस्टूड द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। सो CH4 is this molecule, and here in this molecule this consists of two elements, one is carbon, another is hydrogen. Now we have to find out how much percentage of carbon is present in this molecule and how much percentage of hydrogen is present in this one. तो उसका फॉर्मूला है percentage of carbon is equal to weight of carbon atom, total carbon atoms upon its atomic weight, molecular weight, मतलब atomic weight। उसके atomic weight कितना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, that will give you the percentage of carbon। तो आप देखते हैं ना यहाँ पे इसके अंदर कार्बन का जो वेट है वो कितना है, sorry this is not, this is molecular weight, sorry, molecular weight, weight of any individual element upon the molecular weight, ये formula है। So in order to find out percentage of any particular element, generalized formula है weight of any particular element divided by molecular weight, that will give the percentage in that molecule। तो इस तरीके से ना weight of carbon इसके अंदर देखते तो 12 है, ठीक है। और molecular weight हमने देखा नहीं, तो molecular weight कैसे निकालते हैं हमें देखा था 12 into 1 प्लस कर लिखा था हमने, हाइड्रोजन का कितना आएगा 1 into 4, तो कुल मिला के वो कितना होता है 12 1 12 plus 4 it is 16, तो ये आएगा 16, 12 is to 16 इतना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसके अंदर मिल जाएगा। तो 12 upon 16 जो भी आपका है वो उसका मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल गिव द परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि बीइंग इट्स अ परसेंटेज that 100 has to be put over there. Second, percentage of hydrogen is equal to weight of hydrogen upon molecular weight। अभी ये कॉमन रहेगा, molecular weight कॉमन रहेगा क्योंकि we have to find out percentage in molecule into again 100। तो ये अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, एक का 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन यहाँ पे आएगा 16 इनटू आएगा आपको 100, तो ये उनका परसेंटेज है जो इसके अंदर आपको मिलेगा। Got it? So this is the percentage of pH here. So this is the formula by which we can calculate the percentage of any particular element। अभी अगर हमारे पास ऐसा है कि सपोज C2H5OH ऐसा एलिमेंट, तो इसके अंदर देखिए ना ये मिथिल अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, तो 3 एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापस वही होगा, दैट इज वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सब्सटेंस, यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सब्सटेंस, यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज़ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज लाइक दिस। दिस इज द फॉर्मूला। हमारे पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हो, सुक्रोज क्या है हमारे पास C6H12O6, this is called as glucose। तो दिस इज द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, ग्लूकोज के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमें सबका परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा वापस, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। दूसरा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दैट इज वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तीसरा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास मानो H2SO4 नाम का सब्सटेंस है, H2SO4 आप जानते हैं, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सबका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
weight of hydrogen divided by molecular weight of H2SO4. दूसरा, percentage of sulfur is equal to weight of sulfur upon molecular weight of H2SO4. And number 3, percentage of oxygen is equal to weight of oxygen divided by molecular weight or into 100 सबको करना है. Clear with this? So this is the way how we can calculate the percentage of that particular element in a given compound. तो ये भी एक बेसिक मतलब फॉर्मूला जो हमने शायद 9-10 में देखा भी हुआ है, शायद भूल जाते हैं. यहाँ पे रिकैप होता है हमें कई सारे न्यूमेरिकल के अंदर. ये बहुत फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है how to calculate the percentage of that element. So in that sense you can see here, in order to calculate the percentage, we can calculate the percentage of particular elements in a compound, in a molecule. So for that we need the molecular weight of the substance, individual weight of the substance multiplied by 100. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. So this is also one of the important formula, that's called percentage by weight. तो ये दोनों हमारे सामने वापस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. So ये कॉन्सेप्ट है. और इसी के अंदर और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट चलते चलते आ जाता है, जाते जाते डिस्कस कर लेता हूँ. एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होता है एक्सेस रिएजेंट. ये भी कॉन्सेप्ट आता है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस, दिस इज एंड एक्सेस रिएजेंट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था H2 plus Cl2 प्रोड्यूसेस twice HCl ऐसा, और इसका रेशियो बताया 1:1:2. ये रेशियो बताता है. अभी देखिए एग्जांपल 7 we have to discuss what is limiting reagent and what is excess reagent. दोनों केस में देखते हैं कि what is limiting reagent, what is excess reagent. नाम से पता चलता है लिमिटिंग जो लिमिट करता है, एक्सेस जो ज्यादा है. इस रिएक्शन को मैंने अभी तीसरी बार आपके सामने प्रेजेंट किया है. H2 plus Cl2 produces HCl, हाइड्रोजन रिएक्शन क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. यहाँ पे देखते हैं तो इसका 1 मोल है. रिएक्शन पढ़ने का तरीका अभी देखा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ HCl. तो रेशियो इज 1:1:2 इतना आपको मिलता है. अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मैं अगर 2 मोल्स लेता हूँ, इसका 1 मोल लेता हूँ, तो इसके कितने बनेंगे ये सवाल. हाउ मच इट विल फॉर्म. रेशियो ये बताता है. दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1:1 मतलब 1 हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन ही आएगा. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन ही रिएक्ट हो सकता है. यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन बट 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज गिवन. तो इसके 1 के साथ इसका 1 ही रिएक्ट होगा और बनेगा डबल मतलब ट्वाइस. तो यहाँ पे 2 ही बनेगा. बट इसका एक ही रिएक्ट हुआ तो एक एक्सेस में है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. क्योंकि इसका इसके साथ एक मोल रिएक्ट होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इट वोंट गो अहेड. द रीजन बिहाइंड दैट, इस एक मोल के साथ इसका एक ही मोल रिएक्ट होगा. अभी इस हाइड्रोजन का एक मोल अभी भी बचा हुआ है, वो तो रिएक्ट किसके साथ होगा, बिकॉज़ देयर इज नो हाइड्रोजन टू रिएक्ट. सो दैट्स व्हाई दो दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, this present in limited amount. That's why this reagent is called as a limiting reagent and this reagent is called as an excess reagent. So ये भी concept है. उल्टा करते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, उसके 3 मोल्स लेते हैं, तो इसके कितने बनेंगे. रेशियो यही बताता है. इसके एक के साथ इसका एक ही आएगा, ये वाला, ये मैटर करेगा पहला वाला. तो इसके एक के साथ इसका एक ही आएगा और फिर इसके 2 ही बनेंगे. तो नाउ दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज ये एक ही है, और दिस इज एक्सेस, और एक्सेस कितने हैं, 2 एक्सेस है क्योंकि इसके एक के साथ इसका एक ही रिएक्ट होने वाला है. 2 moles will remain in excess. So that's why the substance, the reactant which remains in more quantity, even though the reaction is more, that is called as excess reagent. And the reactant which gets over, still another reactant is there, or whenever reaction is over, then that is called as a limiting reagent, because once that is consumed, no further reaction can occur, and that's why this is called as a concept of limiting reagent and excess reagent. Remember this? So these are the concepts what we have discussed today for this some basic concepts in chemistry, जो हमारे बुक से भी थोड़े ज़्यादा कुछ concept यहाँ पे होते हैं. Most of the concept from this chapter is over. अगर इस chapter में कहीं किसी को कुछ difficulty है, तो तुषार sir अभी allow them to unmute the sound and all, and then we can have bit doubt session for this one. और हो सकता है कि तुषार sir can organize a meeting like Monday, so we'll have the face-to-face interaction. It can be a welcome discussion, introduction with each other. But let's have today a doubt session. So please, if anyone has a doubt in some basic concepts in chemistry, then we'll discuss, because this chapter is over from my side. Numericals is remaining. तो मेरे मतलब न्यूमेरिकल्स आ remaining. तो अगर आप चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे. आप थोड़ा सा ट्राई करो, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल समझाता हूँ मैं, because all formulas given to you. Please, तो
Please, doubts, everyone, whoever has a doubt, please let me know your doubt. Tushar sir, I'm not getting sound of anyone. हेलो, हाँ सर. हाँ बोलिए. तो बोलिए बच्चों को, is there any doubt to anyone? They can directly have talk with me, so I can have doubt session with them. अनम्यूट केले मी सगळ्यांना. हाँ, तो या तो डर रहे या कुछ डाउट ही नहीं है किसी को, या तो बहुत ज्यादा समझा या कुछ भी नहीं समझा, like that. So let me know. Someone has put the chat, I think so. Okay, someone has, Parth had said he has no doubts. So देखिए, either you got the chapter very well, either you didn't got something or nothing, and that's why we don't have the doubt. So don't have the fear. Please be open. We can have the interactions. और किसी को किसी भी concept में doubt है, कुछ और कुछ चाहिए, कुछ extra point है, कुछ extra discuss करना है, तो we can have that. So we are open to have that discussion. So please, everybody, come with there. Don't worry. Need not to have the botheration of any of the things in any ways in any manner. Or even I will tell you, I am compatible with the 3 of the languages: English, Hindi, and Marathi. Any of the 3 languages you can have communication with me. Need not to have the fear of the language to again. So you can talk in English, you can talk in Hindi, you can talk in Marathi. 3 of the languages. 4th मुझे नहीं आता है, so I won't be able to understand. So please, from Om Bosle to me privately, no doubts from my side, sir. ठीक है. Om has also no doubts. Thank you, Om, for your feedback. Like rest peoples. Okay. Rutu. Then Nidhi. Okay, the Nidhi is saying, please explain law of multiple proportion. Okay, ठीक है. So Nidhi has the doubt, and she is asking a doubt specifically for law of multiple proportion. ऐसा उसका कहना है. बाकी किसी का जस्ट हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन नहीं आए कहीं से. तो कशिश गोयल, नो डाउट. ओके, गुड, कोई बात नहीं. तो सिर्फ निधि हैज ओनली वन डाउट. अगर आप डाउट नहीं है, तो जिनको डाउट नहीं है फिर वो लॉग आउट कर सकते हैं या फिर सुन भी सकते हो, चॉइस आपका है. बट आज का लेक्चर मेरा उस तरीके से हो चुका है, तो जिनका डाउट है उनका डाउट सेशन में कंटिन्यू करूंगा. दोज हु डोंट हैव द डाउट और डोंट वांट टू लिसन फॉर द लेक्चर कैन लॉग आउट फ्रॉम द सेशन. विल मीट ऑन मंडे, और मंडे विल बी हैविंग अ कंफर्ट सेशन, दैट इज इंट्रोडक्टरी सेशंस, एंड विल हैव द इंटरेक्शन सेशंस टू. तो मंडे को आई वुड बी देयर. I won't be taking a lecture, but we'll be having the interactive sessions. Let's introduce ourselves, because अभी हमारा already एक chapter हो चुका है और हमारे काफी lecture भी अपने almost 1 महीने से lecture चल रहे हैं. So let's have the introduction for each other, everyone, amongst everyone, and then we'll go ahead. तो मैं अपील कर रहा हूँ कि आज जिनको doubt नहीं है वो log out कर सकते हैं. अगर आगे lecture सुन रहे हैं तो सुन सकते हो, because Nidhi has raised the question and she want to explore the more law of multiple proportions. So I will go with this one. So please. Yes, Nidhi, thank you. मतलब अच्छा लगा कि आपने डाउट पूछा. I will explain that law. Law of multiple proportion. Okay. Law of multiple proportion. Once we go to the law, नाम से ही पता चलता है law of multiple proportion. ठीक है. मैंने उसके लिए एक एग्जांपल दिया था पहले, क्योंकि should be always explain with the example guys. So अब देखिए ना कि कई सारे एग्जांपल्स हैं. अभी लास्ट टाइम मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा. C+O प्रोड्यूसेस CO और C+O2 प्रोड्यूसेस CO2. ये है मेरा रिएक्शन है. अभी 2 अलग अलग रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होता है ना. ये तो आप सब जानते हो ना. कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है. और हियर अगेन कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों डिफरेंस है. देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डिफरेंस है. दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, क्वालिटीज अलग है ना. काफी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है. मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हियर कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म एंड हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. ये तो सब क्लियर हुआ. डिफरेंस क्या है रिएक्शन के अंदर? डिफरेंस क्या है? दोनों जगह इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ ऑक्सीजन है. यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है. दोनों रिएक्शन के अंदर एलिमेंट फिक्स है. एलिमेंट कार्बन ही है, एलिमेंट ऑक्सीजन ही. तो चेंज क्या हुआ फिर? दो द एलिमेंट्स आर सिमिलर,
Why the products are different then? Elements are similar. Why the product is different? The reason behind that, same atoms of the element reacts with a different proportion, reacts with each other in different proportion. ये मैटर है. तो पहले रिएक्शन के अंदर कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट होता है. यहाँ पे मोल नहीं कहना चाहूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे O2 के फॉर्मेट में नहीं लिखा. मतलब आपको ये मैं कन्फेस करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा है. बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे हमेशा O2 लिखना पड़ेगा. ट्वाइस C प्लस O2 प्लस ट्वाइस CO आएगा. इस तरीके से रिएक्शन आएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग जरूरत नहीं उसकी, जब जरूरत होगी तो बता दो. बट कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट होके इसका 1 मॉलिक्यूल तैयार होता है. तो रेशियो है 1:1:1, बट इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ एटम. 1 atom of carbon reacts with 1 atom of oxygen to produce 1 atom of carbon monoxide. ठीक है. इतना हम लोग यहाँ पे मिल रहा है. Now the thing is that second is my ratio देखते हो यहाँ पे 1 atom is to 2 atoms is to 1 molecule ऐसा है. अब देखिए इस फॉर्मेट में देखेंगे तो 1:1 और here 1:2. This is the difference. ये दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है. Clear with this? So इसका मतलब क्या है? दोनों रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर आप देखिए कार्बन का एटम 1 है और यहाँ पर भी कार्बन का एटम है. तो कार्बन एलिमेंट दोनों जगह उसने प्रोपोर्शन नहीं बदला है. कार्बन का प्रोपोर्शन वही है. पहले रिएक्शन में भी उसका 1 ही एटम आ चुका है, दूसरे रिएक्शन में भी उसका 1 ही एटम आ चुका है. यहाँ पे डिफरेंस देखिए. पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन का 1 एटम आ चुका है, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन के 2 एटम आ चुके हैं. तो अगर मैं इसे A एलिमेंट मानता हूं तो दिस इज द B एलिमेंट. ऑक्सीजन इज द B एलिमेंट. नाउ ऑक्सीजन A एलिमेंट आपके बुक के हिसाब से अगर देखते हो तो बुक में ऐसा कहा गया कि एलिमेंट A रिएक्ट्स विद एलिमेंट B ऐसा. सो दिस इज एलिमेंट A एंड दिस इज एलिमेंट B. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. A एलिमेंट दैट इज कार्बन हु मेंटेन्स इट्स प्रोपोर्शन 1:1. पहले रिएक्शन में भी 1 एटम रिएक्ट हो चुका है, दूसरे इसमें भी उसका 1 ही एटम रिएक्ट हो चुका है. बट दिस इज द B एलिमेंट व्हिच इज ऑक्सीजन. पहले रिएक्शन में उसका 1 ही एटम रिएक्ट हो चुका है और दूसरे इसमें इसका 2 एटम रिएक्ट हो चुका है. सो 1:2. तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 है, जबकि कार्बन का 1:1 ही है. 1:1 है. तो इसका मतलब क्या होता है कि when two elements, that is carbon and oxygen, when two elements chemically combine with each other, forming 2 or more different compounds. 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. यहाँ पे 2 हो चुके हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. So when two elements chemically combine with each other, forming 2 or more different compounds, then the masses of interacting element bear a simple whole number ratio 1:2. Masses of interacting element bear a simple whole number ratio. Law masses के फॉर्म में बोला गया है. मैंने एटम के फॉर्म में आपको समझाया. तब masses के फॉर्म में बोलते हैं 12:16. यहाँ पे आएगा 12:32. मास के फॉर्मेट में अगर बात करते हो तो 12:16 and here 12:32. ये मास के फॉर्मेट में आएगा. तो वैसे भी देखते हो तो फिर 1:2 प्रोपोर्शन है. तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बदल रहा है लेकिन कार्बन का प्रोपोर्शन नहीं बदल रहा है. तो कभी भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को कहता है कि दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रोपोर्शन में रिएक्ट होते हैं तो दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. उसी रेशियो में रिएक्ट होते हैं. मतलब 1:2, 2:4, 4:8 इस रिएक्शन में होगा, डबल के फॉर्मेट में होगा. 2.5 एटम 1.5 एटम ऐसा रिएक्ट नहीं होगा. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट है. तो उसका स्टेटमेंट ऐसा है, when two elements chemically combine with each other, then the masses of interacting element bear a simple whole number ratio, that is 1:2. ऐसा होता है. So this is what we can say. ये हमारा होता है law of multiple proportions. Get it? Got it, Nidhi? Or rest of the people who is still attending the lecture. Also, you got it? Yatil, is there any doubt? Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Are there more doubts from anyone? If not, then we'll take a leave and see you on Monday. So, thank you very much. See you Monday.